السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ وزیر اعظم مودی کو شاہ بانو یاد ہے، تبریز انصاری، اخلاق، علیم الدین اور پہلو خان یاد نہیں۔ وزیر اعظم کی لوک سبھا تقریر پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا رد عمل۔ 2023 میں تلنگانہ میں بی جے پی اقتدار پر آئے گی، سابق وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کا دعویٰ۔ بہنوئی کے ہاتھوں برادر نسبتی کا قتل، سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے دھمکیوں کے بعد کارروائی کا ملزم نے کیا اعتراف۔ اور سلیمان نگر چنتل میٹ میں برقی حکام کی مبینہ لاپرواہی، کمسن لڑکا ٹرانسفارمر کی برقی رو سے جھلس گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو شاہ بانو یاد ہے، تبریز انصاری، اخلاق، پہلو خان اور علیم الدین انصاری یاد نہیں۔ وزیر اعظم مودی کی منگل کو لوک سبھا میں کی گئی تقریر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو یہ بھی یاد نہیں کہ علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو وزیر اعظم کے ایک وزیر نے ہی پھولوں کا ہار پہنایا تھا۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کے گٹر میں رہنے کی بات کر رہا ہے تو آپ ہمیں تحفظات کیوں نہیں دیتے؟ مسلمانوں کو پسماندگی کے نام پر تحفظات دیے جائیں اور انہیں اوپر اٹھایا جائے۔ اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ نرسمہا راؤ بابری مسجد کے انہدام کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعظم رہتے ہوئے بھی انہوں نے بابری مسجد کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پردھان منتری کو شاہ بانو یاد ہے، تبریز انصاری یاد نہیں آیا، اخلاق یاد نہیں آتا ان کو، پیلو خان یاد نہیں آتے ان کو، علیم الدین انصاری یاد نہیں آتے ان کو، یاد نہیں آتا کہ انہی کے منتری کے لوگوں نے علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو پھول کا ہار پہنایا تھا۔ تو اور اگر کوئی یہ گٹر میں رہنے کی بات کر رہا ہے تو بھائی آپ ہم کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ دیجئے نا، مسلمانوں کو بیکورڈنس کے نام پر ریزرویشن دیجیے، چلیے نکالیے، ہم کو اٹھائیے اوپر۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جامعہ ملیہ کے میرٹری کریکٹر ختم کرنا چاہتے، ہاں؟ آپ کے پاس ایک مسلم ایم پی جیت کے نہیں آتا، آپ کے پاس 300 میں سے کون رکھ رہا ہے پیچھے کو نیچے؟ آپ رکھ رہے ہیں۔ اس پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان ایم پی جیت کر آئے؟ 300 میں سے آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ان کی آئیڈیالوجی میں، ان کی بولنے میں اور کرنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یقیناً نرسمہا راؤ ریسپانسبل ہے بابری مسجد کی ڈیمولیشن کے لیے، وہ پرائم منسٹر رہتے ہوئے بھی اس کو بچا نہیں پائے۔ اب ایک اور پردھان منتری ہمارے پاس مسٹر مودی کے روپ میں ہے، وہ اپنی آئیڈیالوجی پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر چنا ریڈی نے سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ پر گاندھی خاندان اور کانگریس کے بعض سینئر قائدین کے ساتھ غداری کا الزام عائد کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چنا ریڈی نے کہا کہ راجیو گاندھی کے انتقال کے بعد پی وی نرسمہا راؤ کو وزیر اعظم بنانے میں بھی سونیا گاندھی کا ہاتھ رہا، لیکن نرسمہا راؤ نے نہ صرف سونیا گاندھی بلکہ کانگریس کے سینئر قائدین موپنار، کروناکرن اور دوسروں کو بھی ہراساں اور پریشان کیا۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کی کلیان سنگھ حکومت جہاں بابری مسجد کے تحفظ میں ناکام رہی، وہیں نرسمہا راؤ نے بحیثیت وزیر اعظم بابری مسجد کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان نرسمہا راؤ کو بابری مسجد کی شہادت کا ذمہ دار مانتے ہیں۔ اس کے بعد کانگریس پارٹی کو میجارٹی آیا، وہ ٹائم پہ سونیا جی حیدرآباد کو میرے کو پالیٹکس اب وہ کچھ موقع نہیں ہے بول کے پورا بیگیج لے کے دلی سے حیدرآباد آئے، سو آدمی پی وی نرسمہا راؤ کو واپس بلا کے پردھان منتری بنائی۔ ویسا آدمی آئندہ بھی میں پردھان منتری رہنا، اس دیش کو میں چلانا بول کے یہ سونیا گاندھی فیملی کو دبانے کے واسطے بہت کوشش کرا۔ یہ سونیا گاندھی راہل گاندھی نہیں ہے، اس کا پریوار ہی نہیں ہے، جو لوگ یہ پریوار کو نزدیک ہے، کروناکرن صاحب، شنڈیا صاحب،
मुपन्ना साहब, ऐसा लोगों को भी कुछ पॉलिटिक्स में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, वैसा बहुत कोशिश करा पीवी नरसिम्हा राव साहब। उसके बाद जो दिसंबर 6, 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, बहुत बुरा इंसिडेंट है इस देश के हिस्ट्री में। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो राष्ट्र प्रभुत्व है, बीजेपी का प्रभुत्व, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर था, उसका जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ। मगर जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हुआ ये प्रोटेक्ट करने के वास्ते, सेंटर स्टेप इन होने का था। सेंट्रल इंटेलिजेंस है, सेंटर का ने पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंटर का ने मिलिट्री है, वैसा ये बाबरी मस्जिद को बचा सकते थे, मगर वो काम भी नहीं हो सका। बोल के आज मुस्लिम कम्युनिटी में कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाउट आया होना, बोल के ये लोग बहुत उदासीन थे, उसलिए बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हो गया। ये सेक्युलर फैब्रिक को ये लोग थोड़े, बोल के मुस्लिम कम्युनिटी ये इंसिडेंट के बाद कांग्रेस के ऊपर जो गुस्सा पैदा कर लिया, आज तक भी वो कम नहीं हुआ। इस वास्ते एक बैकबोन था कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम कम्युनिटी। ये इंसिडेंट के बाद वो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से दूर चले गया। आज भी वो लोग नज़दीक आने के लिए अभी डाउट में है, बोल के मैं बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि 2023 में तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पर आएगी। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा के हालिया इंतखाबात में पार्टी के 4 उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर तेलंगाना की आवाम का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम ने मोदी और बीजेपी पर जो भरोसा किया है, इसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। केसीआर हुकूमत पर तनकीद करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद पर रकम खर्च करने के बजाय सेक्रेटरीट और असेंबली की तामीर पर रकम खर्च की जा रही है। केसीआर की खानदानी सियासत को तेलंगाना की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि नीति आयोग के इजलास में केसीआर की अदम शिरकत बाइस अफसोस है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को 20% वोट हासिल हुए हैं और हमें उम्मीद है कि 2023 के इंतखाबात में तेलंगाना में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुकूमत कई शोबेजात को बकायाजात बाकी हैं, इसकी वजह से कामों में रुकावट पैदा हो रही है। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने कहा कि इमारत व शुआरा, महकमे आबपाशी और फीस बाज अदायगी के बकायाजात अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से तुलबा में बेचैनी पाई जाती है। चंद्रशेखर ने कहा कि रियासत को मकरूज बनाकर रख दिया गया है। अब नए सेक्रेटरीट और असेंबली की तामीर के नाम पर अवाम पर करोड़ों रुपए का बोझ आयद किया जा रहा है। अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमों पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। रियासती कांग्रेस के सेक्रेटरी मानवत रॉय ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए की तनख्वाह में किस तरह उनका गुजर हो पाएगा। बाकायदा टीचर्स को ही कई मुश्किलात का सामना है। रॉय ने कहा कि नए सेक्रेटरीट और असेंबली की तामीर के साथ साथ परेशान हाल मुलाजिमीन के मसाइल की फौरी यकसोई की जाए। तेलंगाना जना समिति के सरबराह कोदंडराम ने कहा है कि मुजवजा बलदिया इंतखाबात में जनसेना पार्टी तनहा मुकाबला करेगी। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने बताया कि 13 जुलाई को पार्टी का प्लीनरी इजलास मुनक्किद होगा। नई असेंबली और सेक्रेटरीट की तामीर से मुताल्लिक कोदंडराम ने कहा कि आखिर नए सेक्रेटरीट और असेंबली की तामीर की ज़रूरत क्या है। उस्मानिया हॉस्पिटल के अलावा समाजी बहबूद के हॉस्टल्स की मौसर मरम्मत की जाए ताकि अवाम को मुश्किलात पेश ना आएँ। इस मामले में हुकूमत को उजलत से काम नहीं लेना चाहिए। उनका कहना था कि रियासत में बलदी निज़ाम की कारकर्दगी मौसर नहीं रही। एक वक्त की बारिश में हालात इंतहाई इब्तर नजर आते हैं। कोदंडराम ने ज़ाती मफाद के लिए पार्टी बदलने वाले कायदीन को भी तनकीद का निशाना बनाया।
रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने चारशंबे को रैन बाजार डिवीज़न का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि डिवीज़न में मरम्मती कामों की निशानदही की गई है और इस सिलसिले में ओहदेदारों को भी तवज्जो दिलाई गई। उनका कहना था कि जो भी कामों की निशानदही हुई है तखमीना तैयार करने के बाद इसकी मंजूरी हासिल की जाएगी और फिर जल्द कामों का आगाज़ किया जाएगा। इन्होंने बताया कि बाज़ बैच वर्क के काम भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार के इलाके में आज कुछ मेंटेनेंस के मसाइल थे बल्दी बरक़ी आबरसानी के, तो उसके दौरा करके उसका जायज़ा लिया गया। तकरीबन बहुत सारे काम जो से यहाँ पे एस्टीमेट तैयार है, मंजूरी के मराइल में है और इंशाअल्लाह कल ही जोनल कमिश्नर से उसकी मंजूरी हासिल करके शार्ट टेंडर में काम कर लगा के फौरी काम का आगाज़ करेंगे। इसमें कुछ रोड का काम है, कि ड्रेनेज का काम है, वाटर लाइन का काम है। ये तमाम कामों की जल्द से जल्द तकमील करेंगे। एक देरीना मसला था यहाँ पे पैच वर्क का, वो काम आज शुरू हुआ और शाम तक इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पीछे गलियों में रेलवे ट्रैक के बाजू एक गली है जहाँ पर परसों रमज़ान से पहले यहाँ के लोगों के इसरार पर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर एक पानी की लाइन डाली गई, जिससे वहाँ के मुकामी लोगों को काफ़ी सहूलत मिली। वहीं पर ड्रेनेज लाइन और रोड का काम कराना है। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द उसकी मंजूरी लेके उस काम की तकमील कराएंगे। बल्दी बरक़ी आबरसानी के मसाइल में जहाँ आवाम को कुछ दुश्वारियाँ हैं, शिकायत है, जैसे जैसे हमको शिकायत वसूल होती जा रही है वहाँ पर पहुँच के उनकी शिकायत को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे। यहाँ पर भी एस्टीमेट बन के काफ़ी अरसा गुजरा लेकिन मंजूरी नहीं हुई। कल ही इसकी मंजूरी हासिल करके शार्ट टेंडर में जल्द से जल्द काम शुरू कराएंगे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासती हुकूमत के मुशीर ए के खान ने हज हाउस में आज़मीन हज के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि हज कमेटी के सदर नशीन सैयद मसीउल्लाह और सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम अपने तालमेल से तमाम कामों को मुकम्मल करना चाहिए। इन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से बरक़ी और ड्रेनेज के काम अनकरीब पूरे हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी आज़मीन हज को खिदमात फराहम करने वाली कमेटियाँ भी जल्द कायम की जाएंगी। इन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर महकमे अक़लियती बहबूद से भी दरकार स्टाफ हासिल किया जाएगा। इन्होंने बताया कि हैदराबाद बहैसियत इमिग्रेशन पॉइंट मुल्क भर में नंबर 1 है। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए गाड़ियों की तकसीम का दूसरा मरहला 28 जून को मुनक्किद करेगा। सदर नशीन महकमे अक़लियती बहबूद अकबर हुसैन ने मीडिया को बताया कि 28 जून को ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत 67 गाड़ियां तकसीम की जाएंगी। इन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत 342 गाड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम बनाया गया था, जिससे अब माबाकी गाड़ियों की तकसीम से स्कीम के दरख्वास्त गुजारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन्होंने बताया कि गाड़ियां हासिल करने वाले ड्राइवर्स ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। सैयद अकबर हुसैन ने बताया कि इस तरह से 43 कंप्यूटर्स में से 15 कंप्यूटर सेंटर कायम हो चुके हैं ताकि नौजवानों को कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता किया जा सके। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद की हलाकत के खिलाफ चार मीनार के पास एहतजाज किया गया। SIO के कारकुनों की तरफ से चार मीनार के पास एहतजाज के दौरान अचानक हलचल मच गई। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए एहतजाजी नौजवानों को तहवील में ले लिया। चार मीनार के पास सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखे गए। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज ऑफिसर संगारेड्डी और इंचार्ज ऑफिसर श्रीकांत ने वार्ड नंबर 12 के इलाके ऊपर बाजार का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया है, जहां रुकन बल्दिया मोहम्मद याकूब अली ने मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए, जिसमें एक वाटर टैंक की तामीर भी शामिल है। इन्होंने मोहम्मद याकूब अली की सताइश करते हुए उन्हें वार्ड के ज़ेरे इल्तवा कामों को भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया है। इन्होंने कचरे की नकासी पर भी खास तवज्जो देने के लिए कहा।
वाज़ेह है कि श्रीकांत का यह दौरा कलेक्टर संगारेड्डी एम हनुमंतराव की हिदायत पर किया गया। जोनल कमिश्नर जीएचएमसी की निगरानी में अत्तापुर और हैदरगुड़ा में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजिरों को बर्खास्त कर दिया गया। बलदिया की जानिब से इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये मुहिम चलाई जा रही है ताकि गैर कानूनी तौर से कारोबार करने वालों से फुटपाथ को पाक किया जा सके। बलदिया की इंहदामी कार्रवाई में पुलिस भी मौजूद रही। नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने अपने ब्रादर निस्बती का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अलकापुर कॉलोनी के साकिन 26 साला अब्दुर्रहमान की अहलिया 2 माह कबल खराबी सेहत के बायस इंतकाल कर गई थी। मुलजिम अब्दुर्रहमान के मुताबिक इसके खुसर ब्रादर निस्बती इसे अहलिया की मौत का जिम्मेदार समझते हुए हरासा कर रहे थे। इस सिलसिले में इसे धमकियां भी दी गई थी। मंगल की शाम रहमान का ब्रादर निस्बती चांद इससे मिलने के लिए कुतुबशाही कॉलोनी आया और फिर इसे वहां धमकियां देने लगा। रहमान के मुताबिक चांद ने यह धमकी भी दी कि अगर वो दूसरी शादी करेगा तो वो इसकी दूसरी अहलिया का कत्ल कर देगा। इसी बात से बरहम होकर रहमान ने चांद पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो बरसरे मौका हलाक हो गया। रहमान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। सुलेमान नगर चिंतलमेट में बरकी हुक्काम की मुबैना मुजरिमाना लापरवाही से एक और कमसिन लड़का झुलस गया। तफसीलात के मुताबिक 8 साला फैजान उर्फ फरीद सुबह स्कूल जा रहा था कि स्कूल से मुत्तसिल ट्रांसफार्मर की बरकी रूट छू जाने से वो ट्रांसफार्मर को चिपक गया। बड़ी मुश्किल से इसे निकाला गया, लेकिन इसके सर के बाल और जिस्म झुलस गया। मुकामी अवाम ने बताया कि इससे पहले भी इसी ट्रांसफार्मर में शॉक लगने से एक नौजवान झुलस गया था। बार बार पेश आ रहे वाक़े के बावजूद भी मुकामी बरकी हुक्काम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, जिससे ट्रांसफार्मर के पास से गुजरने वालों को खतरा लाहक है। नल्लाकुंटा के रत्नानगर में पकवान गैस सिलेंडर के फटने से सनसनी दिखी गई। बताया गया है कि धमाके की शिद्दत की वजह से मकान की छत और दीवार को शदीद नुकसान पहुंचा। ये मकान बीजेपी के लीडर लक्ष्मण गौड़ का बताया गया। धमाके से मकान में आग भी लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंच गई। इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। शहर के मसरूफ तरीन इलाके पंजागुट्टे में एक और कत्ल। तफसीलात के मुताबिक पंजागुट्टे में 2 ऑटो ड्राइवर्स के दरमियान हुए झगड़े में एक ऑटो ड्राइवर हलाक हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। शुरुआती इत्तलात के मुताबिक इन दोनों में मामूली सी रकम के लिए बहस व तकरार हुई, जिस पर ऑटो ड्राइवर रियासत अली ने मोहम्मद अनवर पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी मोहम्मद अनवर दवाखाने को ले जाने के दौरान फौत हो गया। पंजागुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मफरूर रियासत अली की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर आज़म मोदी को शाहबानू याद है, तबरेज़ अंसारी, अखलाक, अलीमुद्दीन और पहलू खान याद नहीं। वज़ीर आज़म की लोकसभा तकरीर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का रद्द-ए-अमल। 2023 में तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पर आएगी, साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का दावा। बहनों के हाथों ब्रादर निस्बती का कत्ल, ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से धमकियों के बाद कार्रवाई का मुलजिम ने किया एतराफ। और सुलेमान नगर चिंतलमेट में बरकी हुक्काम की मुबैना लापरवाही, कमसिन लड़का ट्रांसफार्मर की बरकी रूह से झुलस गया।
اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔